Assalamu alaikum student, welcome you in Kainat online classroom. How are you student? I hope you all are fine at your home. I am Mrs. Kehkashan. Today I am going to explain your 6th chapter of English reader Chivi, that is a poem composed by Michael Rosen. Michael Rosen is a well-known poet of English literature. Chivi means continuously urge someone to do something often in an annoying way. चिवी का मतलब है किसी बात पर किसी को लगातार रोकना या टोकना. This poem is about a child whose mother always says good things to him. ये पोयम एक बच्चे के बारे में है जिसे उसकी माँ अच्छे काम करने के लिए लगातार टोकती रहती हैं. Student, as we all know that our parents always tell us what we should do or not do. अक्सर हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. स्टूडेंट, दिस इज़ ओनली फॉर आवर बेनिफिट बिकॉज आवर पेरेंट्स वांट दैट वी मे लिव अ हैप्पी, अ पीसफुल, अ मैनरफुल और अ डिसिप्लिन्ड लाइफ. सो दे इंस्ट्रक्ट अस टाइम टू टाइम. When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. जब माइकल 5 साल के थे तो उनकी मदर उन्हें करीब के स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई. द टीचर आस्क, टीचर ने पूछा, व्हाट डज़ योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड. बेटा, तुम्हारी मदर तुम्हें घर पे क्या पुकारती हैं. माइकल डोंट कैम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. तब माइकल की तरफ से एक बहुत ही कॉन्फिडेंट रिप्लाई आई, माइकल डोंट. So student, let's start the poem. I will explain you this poem line by line. Grown-ups say things like, speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. Grown-ups means elder people of our family. Elder people of our family always say such things like speak up means we should speak up when our teacher asks a question. यानी जब हमारी टीचर हमसे कोई सवाल करे तो हमें बोलना चाहिए. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, वी शुड नॉट टॉक व्हेन एवर वी आर ईटिंग समथिंग. जब हम कुछ खा रहे हों तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, यानी मुंह में खाना भरा होने पर हमें बात नहीं करनी चाहिए. इट इज़ अ बैड मैनर. डोंट स्टेयर, वी शुड नॉट गेज एनीथिंग कंटिन्यूअली. हमें किसी भी चीज़ को लगातार घूरना नहीं चाहिए. दैट इज़ अ बैड मैनर. Don't point, we should not point out anything with our finger. It is also count in bad manners. Don't pick your nose. It means we should not put our finger in our nose because it is also a very bad habit. Now come to the second passage. Sit up, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky? Take your hands out of your pocket. Sit up means we should sit in a proper manner. Say please, we have a habit to say please of everyone. Less noise, we should not create too much noise before our elder. हमें सही से बैठना चाहिए, प्लीज़ कहने की आदत होनी चाहिए, कम से कम शोर मचाना चाहिए. Shut the door behind you. Whenever we are entering in our house, we should क्लोज द डोर बिहाइंड अस. हमें अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए जब भी हम घर में एंटर हों. डोंट ड्रैग योर फीट, नेवर ट्राई टू वॉक इन अ वे टू ड्रैग योर फीट. कभी भी अपने पैरों को रगड़ कर नहीं चलना चाहिए. हैवंट यू गॉट अ हैंकी, ऑलवेज मदर आस्क, आर यू नॉट यूजिंग योर हैंकी. यू हैवंट अ हैंकी, क्या तुम हैंकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है. Take your hands out of your pocket. We should keep our hands out from the pocket because it is also a very bad manner and it shows our discourtesy our elders. Now come to the third passage. Pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbow off the table, can't you make your own mind up about anything? We should wear our socks in a proper manner. यानी हमें अपने सॉक्स प्रॉपरली पहनने चाहिए, उन्हें मोड़कर नहीं रखना चाहिए. स्टैंड अप स्ट्रेट, वी शुड स्टैंड अप स्ट्रेट. हमें हमेशा सीधे खड़े रहना चाहिए. डोंट मूव आवर बैक, अपनी कमर को नहीं मोड़ना चाहिए. से थैंक यू, वी शुड से थैंक यू व्हेन देयर इज़ नीड. जब ज़रूरत हो हमें थैंक यू कहना चाहिए. डोंट इंटरप्ट, इट मीन्स वी शुड नॉट इंटरफेयर इन द टॉकिंग
ऑफ आवर एल्डर, हमें अपने बड़ों की बातचीत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नो वन थिंक्स यू आर फनी, यानी कोई नहीं सोचता कि हम फ़नी हैं। मीन्स समटाइम चिल्ड्रन डू सच थिंग टू गेट अटेंशन ऑफ द एल्डर्स, कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं अपने बड़ों की अटेंशन पाने के लिए। बट नो एनी एल्डर थिंक दैट वी आर फनी वाइल दे थिंक्स दैट वी आर मैनरलेस, बल्कि वो क्या सोचते हैं कि हम मैनरलेस हैं। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, वी शुड नॉट पुट आवर एल्बो ऑन द टेबल बिकॉज इट इज़ ऑल्सो काउंट इन बैड मैनर्स, हमें अपनी कोहनियाँ टेबल पर नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये बैड मैनर है। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, वी शुड प्रिपेयर आवर माइंड फर्स्टली एंड देन डू अकॉर्डिंगली, पहले हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए फिर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। वी शुड फिक्स आवर माइंड फॉर वन थिंग एंड डू इट अकॉर्डिंगली, हमें अपने माइंड को एक चीज़ पर फिक्स करना चाहिए फिर उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुमने अपने माइंड को उस चीज़ के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। सो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टैंड द पोएम। कंटिन्यूसली अर्ज अ चाइल्ड मेक हिम इरिटेट, यानी किसी भी बच्चे को लगातार रोकना टोकना उसे इरिटेट कर देता है। बट द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर पेरेंट्स आर फॉर आवर बेनिफिट्स, लेकिन हमारे माँ बाप के जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। सो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टैंड द पोएम।